Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm audible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. O you who believe, bow down, prostrate yourself, worship your Lord, and do good so that you may be successful. And strive for Allah subhanahu wa ta'ala with the striving due to Him. He has chosen you and has not placed upon you in the religion any hardship. It is the religion of your father Ibrahim. He named you Muslims before and in this Quran, so that the messenger may be a witness over you, and you be witnesses over mankind. So establish prayer, give zakat, and hold firmly to Allah. He is your protector, and excellent is the protector, and excellent is the helper. Jazakallah khairan for that beautiful recitation. May Allah make the Quran a source of mercy, healing, and guidance for us all. Before we move forward, I would like to briefly introduce the organizing body behind today's session. IMSA stands for Initiative of Medicos for Service and Academics. It was established with the sole purpose of seeking the pleasure of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Recognizing the need for a dedicated Muslim medicos community platform, INSA works across diverse areas including academics, tarbiyat and personality development, as well as social service, all under the divine guidance of Islam. Through such initiatives, IMSA strives to nurture professionals who are not only academically competent, but spiritually grounded and socially responsible. We pray that Allah places immense barakah in their efforts and accept the initiative as a means of ongoing reward. Ameen. Coming to today's session, fasting in Ramadan is both an act of worship and a physiological state. For Muslim doctors and medical students, this dual dimension creates a unique responsibility. We are not only fasting individuals, we are also clinical advisors for fasting patients. As Muslim medical students and doctors, we must understand fiqh principles alongside medical physiology and medical procedures. Understanding the medical fiqh of fasting allows us to counsel patients accurately, prevent unnecessary hardship, avoid both undue strictness and careless leniency by integrating Sharia principles with sound medical knowledge to become a means of performing the very important ibadah of fasting for the community. To guide us through this holistic and much needed discussion, we are honored to have with us a speaker who uniquely combines medical expertise with Islamic scholarship. Dr. Habib Haris Sir holds an MD in radiology from Kakatiya Medical College, Warangal, and completed his senior residency at Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad. He is currently serving as the head of Department of Radiology at Crystal Mithri Hospital. Alongside his medical qualifications, he has completed a 9-year Alim course from Jamia Nurul Ilm, Dubai, as well as the Fiqh of Medicine course from Al Balagh Academy in the United Kingdom. This rare combination allows him to address health not only through clinical knowledge, but also through the lens of our deen. We are truly blessed to benefit from such balanced and insightful guidance. Without further delay, I humbly invite Dr. Habib Haris Sir to deliver today's session on medical fiqh of fasting. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम सब लोग दुआ मग़फ़िरत करें जनाब सैयद जाहिद साहब के लिए, जो हमारी बहन सैयदा फ़रीहा तबस्सुम के वालिद थे। उनका हाल ही में अभी अभी इनका इंतकाल हुआ और आज नमाज जनाजा थी ज़ोहर में।
तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला मुकाम अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस में। आमीन सुम्मा आमीन। सो ये आज हम लोग जो है जो डिस्कस करेंगे टॉपिक मेडिकल फ़िक़्ह ऑफ फास्टिंग पे इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी मैं काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर लिया था इम्सा के प्लेटफॉर्म से, और लेकिन आज मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहले मैं जो है इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू जस्ट टेल यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए मेन मेडिकल फ़िक़्ह का। उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आवाज़ बराबर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले देखते हैं कि फास्टिंग क्या चीज़ है, उसके डेफिनेशन क्या है। लिंग्विस्टिकली फास्टिंग का माने है कोई चीज़ से रुक जाना, टू विथहोल्ड, टू एब्सटेन। ठीक है। सो शरई माने उसके ये हैं कि टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ड्यूरिंग द डे with the intention of fasting performed by one who is capable and who is required to do so। ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं अब। जी। तो इसमें सबसे पहले कि वन नीड्स टू एब्सटेन फ्रॉम अलाउइंग एनीथिंग एंटरिंग इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज आइदर इंटेंशनली और बाय मिस्टेक, and abstaining from sexual gratification, that is either from anal or vaginal intercourse. Of course, anal intercourse is totally prohibited in Islam, it's haram, but if somebody does, then it's against fasting also. And then ejaculation with physical stimulus, that includes masturbation, that also it's one has to abstain during fasting. And of course, masturbation also is haram, and one has to abstain from it any time. And then the timing is from Fajr, from the beginning of the Fajr time till the starting of Maghrib time. This is the time of the Ramadan fasting. And then it has to be done with the niyat. नियत ज़रूरी है, बगैर नियत के आप रोज़ा रहेंगे तो रोज़ा होगा नहीं। सिर्फ भूखे प्यासे रहने से काफ़ी नहीं होगा, नियत भी उसके लिए लाजिम है। एंड ऑल्सो इसमें एक बात जहन में रखें कि जो शहर का जो वक्त है शहरी का, तो हमारे पास जो यहाँ पे इंडिया में जो रिवाज है कि यहाँ पे हम लोग मस्जिदों में सायरन देते हैं ना, तो सायरन का वक्त, सायरन जो देते हैं वो नमाज का, फजर का टाइम शुरू होने से चंद मिनट पहले देते हैं सायरन। यानी 5-6 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, डिपेंड्स अपॉन द मस्जिद। और उसके बाद में आफ्टर फ्यू मिनट्स द टाइम ऑफ फजर स्टार्ट्स। तो आइडियली सायरन जब होता है, जब जो है रोक देना चाहिए, बेटर है। वरना अगर से आप फजर की अजान, क्योंकि फजर की अजान अक्सर मसाजिद में इंडिया में इट इज़ गिवन आफ्टर द टाइम स्टार्ट्स, आप फ्यू मिनट्स के बाद देते हैं अजान। तो अगर से आप अजान के लिए वेट करेंगे, जिस तरह के सऊदी में व गल्फ वगैरह में होता है कि अजान के साथ ही अजान का टाइम शुरू होते ही अजान हो जाती है वहाँ पे, तो वो टाइम अगर से इस तरह से आप इफ़ यू फॉलो इन इंडिया ऑल्सो, देन आपका रोज़ा होगा नहीं फिर। सो ये इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज़। एंड सो मूविंग अहेड, ये हमने देख लिया है। तो अब अच्छा, और एक बात इसमें ये कि अगर से किसी की आंख खुल गई थी, आंख जो है खुलने के लिए देर हो गई, समझे फजर का टाइम स्टार्ट हो गया था, देन ही वोक अप फ्रॉम स्लीप, एंड उसकी ऐसी हालत में कि उसको जो है हिज नीड्स टू डू गुस्ल, गुस्ल उस पर वाजिब है, यानी उसको वेट ड्रीम हो गया था कुछ भी रात में, तो इफ यू आर स्टार्टिंग, यू कैन स्टार्ट फास्टिंग विदाउट डूइंग गुस्ल ऑल्सो। फजर की नमाज से पहले पहले आप फजर की नमाज का टाइम खत्म होने से पहले वसूल करके नमाज पढ़ लेना बस, तो रोज़ा उसके उससे हार्म नहीं होगा। रोज़ा विल, द फास्टिंग विल बी ओके इफ यू स्टार्ट द फास्ट इन द स्टेट ऑफ जनाबा ऑल्सो। ये बात जहन में रखें। एंड इवन रोज़े के टाइम पे भी, अगर से रोज़े के दौरान अगर से कोई सो जाए और उसको नींद में उसको एहतिलाम हो जाए, यानी वेट ड्रीम आ जाए और सिग्नल एमिशन हो जाए, तो भी उससे रोज़ा टूटता नहीं।
Then exemptions, who are exempted from fasting. तो इसके बारे में ध्यान में रखिए कि फास्टिंग तो तमाम बालिग मुसलमानों पे जो है, जो हैज़ो निफास में नहीं है, उनके लिए सब पे वाजिब है, सब पे फ़र्ज है रोज़ा। और जो उसमें जब बाज़ लोग जो है एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसा कि ट्रैवलर्स है, मुसाफिर हैं, शरई मुसाफिर, या जो बीमार लोग हैं, या बहुत ही बूढ़े लोग हैं, या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है, ये थोड़े कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। सो हदीस शरीफ में है, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिजी की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, का मफहूम यह है कि जो भी एक दिन का भी रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिया बगैर कोई शरई रीज़न के, विदाउट ए प्रॉपर शरई एक्सक्यूज, और बाद में वो इवन ख़ज़ा भी रख लिया, इवन देन उसको जो है, जो अजर मिलना है, जो रूहानी बेनिफिट उसको होना है, वो हासिल नहीं हो सकता, इवन इफ ही फास्ट फॉर द एंटायर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और बगैर कोई प्रॉपर एक्सक्यूज के छोड़ना कितना बड़ा जो है प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली कितना नुकसान है। एक तो है कि अननेसरी छोड़े तो आप यू इट्स अ बिग सिन, गुनाह कबीरा है। और अगर से आप बाद में गुनाह तो कबीरा से आप तौबा भी कर लिए बाद में, और जो है आप उसके बाद में जो है नफिल रोज़े भी उसको कंपेंसेट करने के लिए रहने की कोशिश करें, ख़ज़ा रहने के बाद में भी एक्स्ट्रा। पहले तो ख़ज़ा रहना पड़ता हर रोज़े के बदले में, जो भी छोड़े तौबा करने के साथ साथ। तो तौबा एंड क़ज़ा उसके बाद में फिर, और आप जिंदगी भर भी नफिल रोज़े रहे तो भी जो है उसको आपको हासिल, यू विल नॉट बी एबल टू कंपेंसेट इट। तो इसीलिए वी हैव टू कीप इट इन माइंड। हम जब अपने बारे में भी खुद जब हम ये अमल करते हैं, तो इसके बारे में भी हम ये बात ध्यान में रखें। और जब पेशेंट्स को हम किसी को जो है एडवाइस कर रहे हैं कि आप रोज़ा रख सकते, आप रोज़ा नहीं रख सकते, हम एडवाइस कर रहे हैं कि कोई पेशेंट को, तो हम उसको एडवाइस करते वक्त में ये हदीस को हम जहन में रखना चाहिए कि कितनी सीरियस बात के बारे में हम पेशेंट को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हैं जो एग्जाम्पशंस जिसको मिल सकते हैं रोज़े से। मैंने ऑलरेडी आपके सामने कहा कि मेंसेस में कोई फीमेल है, या पोस्टपार्टम ब्लीडिंग चल रही है। एंड पोस्टपार्टम ब्लीडिंग का मैक्सिमम पीरियड 40 डेज है। 40 डेज के बाद में भी आफ्टर डिलीवरी अगर से ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पशन फ्रॉम फास्टिंग, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज निफास। वो जहन में रखें। कई लोग जो है समझते हैं कि जब तक ब्लीडिंग चलती रही जब तक जो है एग्जाम्पशन है नमाजों से और रोजे से, ऐसा नहीं है। 40 डेज इज अ लिमिट। और इट कैन, और उससे कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, इट कैन बी इवन फॉर 1 डे डिलीवरी के बाद। 1 डे के बाद में ब्लीडिंग अगर से रुक जाए पूरी तरह से, तो यू कैन फास्ट एंड यू हैव टू प्रे। ठीक है, बल्कि बल्कि यू हैव टू फास्ट एंड यू हैव टू प्रे। सो ये बात ध्यान में रखें। एंड देन पेशेंट्स को जब हम एडवाइस कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें हम। एंड देन नेक्स्ट जो है, सिकनेस कब एग्जाम्पशन होता है, ये ज़रा यहाँ जहन में रखें प्लीज़, ये कॉन्सेप्ट समझें बात को, क्योंकि हर बीमारी एग्जाम्पशन नहीं होती रोजे से। अगर से इफ देर इज a reasonable fear that the sickness will worsen or recovery will be delayed by fasting, then that person will be exempted। ठीक है, और अगर से उसका जो सेकंड जो बात उसमें जो कंडीशन है कि अगर से किसी को ऐसी बीमारी है कि अगर से वो रोज़ा रखेगा तो उसकी जान खतरे में है, या उसका कोई ऑर्गन का फंक्शन खतरे में है, उसका ऑर्गन कोई जो है खत्म खराब हो सकता है, जैसा कि पेशेंट कैन गो इनटू परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ एनी ऑर्गन। तो या कोई सिग्निफिकेंट उसको जो है ऑर्गन को डैमेज हो रहा है, या उसको जो है मौत का खतरा है, तो ऐसे में तो रोज़ा तोड़ना उसके लिए जो है वाजिब हो जाएगा, क्योंकि जान की हिफाजत भी शरीयत में वाजिब है। तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा नहीं रखना ज़रूरी हो जाएगा। रोज़ा रखेगा तो गुनहगार हो सकता है, अगर से उसकी जान चली जाएगी उसकी वजह से। तो ये बात को ध्यान में रखना है। बहुत से लोग जो है बहुत ही रिस्की सिचुएशंस में भी रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, जज्बे में जोश में आके ज़बरदस्ती। तो ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, शरई एतबार से भी मेडिकली भी। तो पेशेंट्स को हम गाइड करते वक्त में हम ये बैलेंस करना चाहिए कि एक तो एक है पेशेंट की सेहत की भी हिफाजत हो, वो बीमार ना पड़े, वो कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप ना हो,
वो भी हमको नज़र रखना है उस बात पे भी। और दूसरी तरफ में हमको ये भी देखना है कि अननेसेसरी उसको हम रोज़े से मना जो है कर रहे हैं, ऐसा ना हो। उसका जो है स्पिरिचुअली हम जो है डैमेज ना कर दें, उसको नुकसान ना कर दें, रमज़ान की बरकतों से उसको महरूम ना करें हम गलत एडवाइस देकर। ठीक है। फियर बेस्ड काउंसलिंग जो है नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड अपॉन प्रॉपर साइंटिफिक रीजनिंग एंड प्रॉपर क्लिनिकल प्रूफ। तो ये है कि एक तो है कि जिसको जान का खतरा है या कोई ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है, उसके लिए वाजिब है रोज़ा ना रखे। और जिसके लिए उतना डेंजर नहीं है लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्क है वो ये कि उसकी बीमारी जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है बीमारी सिग्निफिकेंटली, और उसकी रिकवरी डिले हो सकती है सिग्निफिकेंटली रोज़ा रखने से। और उसको जो है उसके डेली एक्टिविटीज़ में उसको करने से जो है वो महरूम हो सकता है, उसको मुश्किल हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है रोज़ा छोड़ना जायज़ है। आप पेशेंट को यू कैन एडवाइज हिम अकॉर्डिंगली। सो सेम थिंग अप्लाइज फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो ऑटोमेटिकली हर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए एग्जामेशन नहीं होता। पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में तो रोज़ा रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जनरली। तो ये बात जो है ध्यान में रखें। अगर से बेबी के हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है या माँ की सेहत को जो है नुकसान हो सकता है, तो ओनली इन दैट केस देयर विल बी एग्जाम्पशन फ्रॉम फास्टिंग। और ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो एक एक्सपर्ट और मुत्तकी मुस्लिम डॉक्टर हो, डॉक्टर जो एक्सपर्ट हो, जो अपनी नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज जिसकी अच्छी हो, और वो अपनी जो जो भी स्पेशलाइजेशन का है वो डॉक्टर उसको स्पेशलिस्ट उसको क्वालिफाइड हो उस स्पेशलाइजेशन में जो एडवाइस करने से पहले। ठीक है। ऐसा नहीं कि कार्डियक कंडीशन के बारे में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर हो और ऐसा मुस्लिम डॉक्टर हो जिसको दीन का इल्म भी हो, और वो यानी उसको रोज़े के मसाइल भी मालूम हो, और वो खुद भी जो है दीन पे अमल करता हो। ऐसा नहीं कि फासिक और फाजिर है, दीन की अहमियत ही नहीं है खुद के पास, तो ऐसा इंसान दूसरों को गाइड करना जो है उसके लिए नॉट अप्रोप्रिएट। तो वी नीड टू हैव इस कम्युनिटी के ऊपर ये फर्ज किफ़ाया है कि वी नीड टू प्रोड्यूस डॉक्टर्स, मुस्लिम डॉक्टर्स हु आर मुत्तकी एंड हु आर नॉलेजेबल बोथ इन द मेडिकल फील्ड एज वेल एज इन इस्लामिक फिक्र। तो यही एम से जो है हम लोग ये लेक्चर्स रख रहे हैं, ताकि हम ऐसे डॉक्टर्स बना सकें जो कॉम्पिटेंट हो इन दोनों चीज़ों में। ठीक है। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इज्तिमात होते हैं, उसका यही मकसद है कि डॉक्टर्स जो बन रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स बने जो एसेट बने उम्मत के लिए, जो उम्मत को गाइड कर सकें, और जो मुत्तकी हों, परहेजगार हों, ज़ाहिरी तौर से भी और बातिनी तौर से भी, हर एतबार से, और अपने प्रैक्टिस में भी बेस्ट हों। सो वी ऑल हैव टू एस्पायर टू बी सच ए डॉक्टर। एंड आई एक्सपेक्ट, मेरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों से सबसे मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब इंशाल्लाह ऐसे अपराइट एंड एक्सपर्ट मुस्लिम डॉक्टर बनने के लिए एस्पायर करेंगे, कोशिश करेंगे, और अपने आप को जो उसके लिहाज से तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। सो एंड ये एक हो गया। अब अगर से समझिए मुस्लिम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर इन दैट केस गैर मुस्लिम डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं। बट साथ में आप जो है ये भी ट्राई टू मेक श्योर कि आप यू यूज योर रीजनेबल जजमेंट ऑल्सो। हाँ, खुद भी जो है सोचना पड़ेगा पेशेंट को कि ये जो मुझे एडवाइस दे रहा है ये जो गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये इज इट रियली अप्रोप्रिएट, या कोई जो गलत एडवाइस तो नहीं मिल रही मुझे, ये बात समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है एग्जैक्टली रमज़ान की अहमियत वगैरह मेरी। तो एटलीस्ट डॉक्टर को समझाएं कि क्या अहमियत है रोज़े की मेरे लिए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस अगर समझो कोई क्रॉनिक इलनेस है, किसी को डायबिटीज, हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी है क्रॉनिक, उसको मालूम है कि जब भी वो रोज़ा रखता है वो तो उसको तबीयत बहुत ख़राब होती है और उसको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर ही रोज़ा छोड़ना, ये जो है उसके लिए जायज़ होगा। और थर्ड है कि क्लियर साइंस है, मतलब किसी को सीवियर वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, सीवियर डायरिया हो रहा, हाई फीवर है बहुत, या ब्लीडिंग हो रही कंटिन्यूअसली, ऑलरेडी चक्कर आ रही है आपको सुबह में, तो देन आप जो है हॉस्पिटल को गए बगैर ही या डॉक्टर के पास डॉक्टर से मशवरा करे बगैर भी रोज़ा तोड़ना या रोज़ा छोड़ना ऐसे आदमी के लिए
ये इट विल बी पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस क्लियर साइंस. सो ये दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक है, एग्जाम्पशंस के लिए. नेक्स्ट ये मैं बताऊंगा कि क्रोनिक जिसको बीमारियां होते हैं मरीजों को, उनके लिए बेटर होता है हमेशा कि वो लोग रमज़ान से पहले ही शाबान में वो लोग जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, इन्वेस्टिगेशंस कर लें. और डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि अपने पेशेंट्स को एडवाइस करें कि रमज़ान से पहले ही वो पूरी तैयारी कर लें रमज़ान की. टेस्ट कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, तमाम जो है दवाओं का जो है देख लें कि ये कितना डोज ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में. ये तैयारी रमज़ान से पहले होनी चाहिए कि और रोज़ा रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते, ये भी जो है डॉक्टर से पहले पूछ लेना चाहिए रमजान बिगिन शुरू होने से पहले ही. और अगर से किसी को डाउट है कि रोज़ा रह सकते हैं, शायद रह सकते हैं, शायद नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कि ट्रायल फास्टिंग करें शाबान में. थोड़े दिन नफिल रोज़े रहने की कोशिश करें शाबान में, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि आप काबिल हैं क्या नहीं है रोज़ा रहने के लिए. ठीक है. और फिर जो है ट्रैवलिंग ऑल्सो इज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम फास्टिंग, बट इट इज़ बेटर टू फास्ट. अगर से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप रोज़ा रख सकते हैं तो फिर रोज़ा रखें. अगर से रखने में मुश्किल हो सकती है आप सोच रहे हैं तो फिर छोड़ दें बेशक. यू आर अलाउड टू लीव इट. बट द फास्टिंग इज बट द ट्रैवल ड्यूरेशन शुड बी एटलीस्ट 48 माइल्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ योर सिटी. अगर से इतना डिस्टेंस आप जा रहे हैं तो आप एग्जामेशन तो आप ट्रैवलर में आएंगे, वरना नहीं आएंगे. एंड योर स्टे शुड बी बिलो लेस देन 15 days वेर यू आर गोइंग. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे कि रोज़े में बस टर्मिनोलॉजीज है रोज़े के ताल्लुक से फ़िक़ी मसाइल के बारे में. एक तो है कि क़ज़ा. क़ज़ा यानी कि आप जो रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिए, बाद में उसके बदले में एक रोज़ा आपको रहना पड़ेगा, उसको बोलेंगे क़ज़ा रोज़ा. एक रोज़ा उसके कंपनसेशन में. नेक्स्ट है कफ़ारा. कफ़ारा यानी पेनल्टी, एक्सपिएशन. तो कफ़ारे की अमाउंट भी हम देखेंगे बाद में. तो ये पनिशमेंट होता है एक्चुअली कफ़ारा. नेक्स्ट और उसके बाद का है फिदिया. फिदिया इज सब्स्टिट्यूट फॉर फास्टिंग. जो रोजा रख ही नहीं सकते उनके लिए है फिदिया देने का. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से रोजा टूटता है. सो एनीथिंग विच एंटर्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है. सॉलिड हो या लिक्विड हो या विजिबल गैसेस है. विजिबल गैस यानी जैसा कि धुआं है, स्मोक, फ्यूम्स, स्टीम, मिस्ट, ये तमाम चीजें जो आपको विजिबल हैं, देख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, लाइक गैस है लेकिन दिख रहे हैं आपको. तो ये तमाम चीजें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर से एंटर होंगे, आइदर थ्रू नोज और थ्रू माउथ और थ्रू एनस और थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन. स्किन से कोई आप ट्यूब डाले डायरेक्टली, जेजोनोस्टोमी ट्यूब डाले, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाले, डिओडम में ट्यूब डाले, कहीं भी ट्यूब ट्यूब डालिए, यूआईटी में जा रहा वो ट्यूब, उससे कोई चीज़ एंटर हो रही, लिक्विड, सॉलिड या विजिबल गैस, तो दैट आल्सो विल ब्रेक द फास्ट. तो ये चीज़ों से जो है रोज़ा टूट जाता है. ये एक बेसिक फार्मूला है. ठीक है. तो अब लेट्स डिफाइन के व्हाट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर फास्टिंग पर्पजेस के लिए. तो ओरोफैरिंक्स का जो इनर पार्ट है, ठीक है, जो इनर पार्ट है ओरोफैरिंक्स का, यानी ए पॉइंट आफ्टर विच यू कैनॉट ब्रिंग आउट द फूड पार्टिकल या लिक्विड, जो भी है वो पार्टिकल आपको, या सॉलिड या लिक्विड है, अगर से आप मुंह में डाले और उसके और या नाक में डाले आप, और आफ्टर आफ्टर इट एंटर्स ए सर्टेन पॉइंट, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते खुद से, चाहे तो उसको आप रोक नहीं सकते अंदर जाने से, एंटर होने से इसोफेगस में. तो वो पॉइंट क्रॉस हो गया तो फिर दैट ब्रेक्स द फास्ट. तो वहां से हम वी आर स्टार्टिंग आवर डेफिनेशन ऑफ द शरई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलेंगे आप. ठीक है. एंड टिल द एनल कैनॉल, जहाँ पे एनल स्पिंक्टर होता है ना, एक्सटर्नल स्पिंक्टर, टिल द एनल एक्सटर्नल स्पिंक्टर तक, यानी टोटल एनस में एंटर होने से पहले तक. सो इंटर एनल तो एनल कैनॉल से लेके नीचे से ऊपर जो है ओरोफैरिंक्स के पोस्टीरियर पार्ट तक, जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ से नीचे जाना, क्योंकि आप आफ्टर दैट पॉइंट यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप. जो भी जाएगा वो डायरेक्टली इट कैन एंटर. सो अब मतलब आप देख लीजिए कि थ्रोट में से जाना भी जो है, एनीथिंग एंटर इन द थ्रोट, ऑल्सो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थ्रोट
थ्रोट का इनर पार्ट में भी जो कोई चीज़ इंटर हो गई, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या विजिबल गैस हो, दैट विल ब्रेक द फास्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टमक में एंटर हो। ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं कि नहीं स्टमक में एंटर नहीं होता ना, वहां से वो लंग्स में चले जाता, तो जो है रोज़ा क्यों टूटता, जैसा कि अस्थमा के इनहेलर्स के बारे में लोग जो है डाउट करते हैं। और इस तरह से तो ये बिल्कुल जो है बात क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट को। स्टमक में रीच करना ज़रूरी नहीं है रोज़ा तोड़ने के लिए, इवन इसोफेगस में रीच करना भी ज़रूरी नहीं है रोज़ा तोड़ने के लिए। आपको इनर फेरिंग्स, हलक के जो पिछले हिस्सा है वो भी अगर से चला जाए वहां पर भी कोई चीज़, तो ख़त्म, आपका रोज़ा जो है टूट जाएगा इमीडिएटली। ठीक है। सो अब उसमें देर आर सम एग्जेम्पशंस, एक्सक्यूज। बास स्टेट्स में, दो स्टेट्स में एक्सक्यूज है। एक एक्सक्यूज क्या है? फॉरगेटफुलनेस। आप अगर से भूल के कोई चीज़ खा लिए, पी लिए, या कुछ भी ले लिए अंदर बॉडी में, तो उसका एग्जाम्पशन है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर उसके बारे में हदीस शरीफ मौजूद है। ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस इज वन एग्जाम्पशन। एंड नेक्स्ट इज आर्डसनेस, यानी कोई चीज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है उसको रोकना। तो इन दैट एक्सट्रीम डिफिकल्टी की सिचुएशन में भी जो है एक्सक्यूज है। जैसा कि अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप जो है धुआं है बहुत वहां पे, आप जा रहे हैं रास्ते में, तो धुआं आपके अंदर एंटर हो गया आपके हलक में, या ना आपके नाक के थ्रू अंदर जो है चला गया हलक में, तो आप उसको रोक नहीं सकते थे। आप चाहते हुए नहीं लिए, आप अनवांटेडली आपके अंदर चले गया, और यू डिड नॉट वांट टू टेक इट इन, एंड यू कुड नॉट हैव स्टॉप्ड इट आल्सो, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टॉप इट। वैसे ही जो है सलाइवा है, सलेवा अगर से आप मुंह में जो थूक है, तो आप बार बार जाके थूकना जो है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो वो थूक थूक भी आप अगर से निगल लिए अपना, इवन नेजल सेक्रेशंस है जो नॉर्मली आपको आते, तो नेजल सेक्रेशंस भी अगर से अंदर का अंदर आप ले लिए अंदर ही, तो दैट इज एक्सक्यूज्ड। ठीक है, दैट इज एक्सक्यूज्ड। सो ये चीज है। थिंग्स विच आर नॉट एक्सक्यूज्ड आर, वन इज नेसेसिटी, यानी कोई मजबूरी से किसी को कोई चीज खाना पड़ा, तो फॉरगेटफुली नहीं खा रहा हो, उसको मालूम है कि वो रोजा है, याद है उसको, बट नेसेसिटी की तरफ से तोड़ा रोजा हो, तो इवन देन दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, बिकॉज असलम ने उसके लिए एक्सक्यूज नहीं दिया हमको। शरीयत में एक्सक्यूज नहीं है, रोजा टूट जाएगा, हाँ, उसके लिए कज़ा एक रहना पड़ेगा बाद में, कफारा नहीं आएगा बस। वैसा ही जो है इग्नोरेंट है कोई, जानता नहीं, लाइलमी में आप जो है, अरे नहीं मालूम था, मैं जो है ये चीज़ कर लिया, नहीं मालूम था मेरे को, जो है फला प्रोसीजर कर लिया, मैं एंडोस्कोपी करा लिया, तो रोजा तो टूट जाएगा आपका। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज इन शरिया। वैसे ही जो है एक्सीडेंटली कोई चीज़ चले गई मुंह में आपके, आप वैसे वजू कर रहे हैं, वजू करते वक्त में, कुल्ली करते वक्त में आप गरारा कर लिए, गरारा करते करते जो है आपको जो है पानी अंदर चले गया, एक्सीडेंटली चले गया, लेकिन आपको रोजा है बल्कि याद था, तो इवन देन रोजा टूट जाएगा आपका। वैसे ही जो है कोएर्जन, कोई आपको जबरदस्ती खाना खिला दिया, तो भी रोजा टूट जाएगा आपका। और वैसे ही नींद में भी या अनकॉन्शियस स्टेट में भी अगर से कोई आपकी चीज में, जीआईटी में कोई चीज एंटर हो गई, तो इट विल ब्रेक द फास्ट। ये हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जो मैं बता रहा था कि फॉरगेटफुलनेस के लिए एग्जाम्पशन के बारे में, एंड दिस एग्जाम्पशन इज ओनली फॉर फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट ये कि अब पीछे हमको ये मालूम हो गया कि जो जीआईटी में जो चीज़, कनेक्शन जिसका नहीं है जो ऑर्गन का, उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, या वजाइना है, या कान है, आंख है, इन चीज यहाँ पे आप डालेंगे कोई चीज़, यहाँ से आप जैसा कि आई ड्रॉप्स डाल लिए, ईयर ड्रॉप्स डाले, तो या यूरेथ्रा में आप जो है कोई चीज़ एंटर करे, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट, बिकॉज कनेक्शन ही नहीं है। वजना में कोई सपोजिटरी रखे, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट, बिकॉज का जीआईटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस बस पुरानी किताबों में जो है ये चीज़ को कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि दे थॉट प्रीवियसली दैट देर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स विद द जीआईटी, which is actually हमको right now we know that from the anatomy that it is not there. So this thing is there, and next ये देखेंगे कि कफारा, रोजे के लिए जो है कज़ा और कफारा दोनों चीज़ें कब आती, लाजिम आती।
कौन से ऐसे काम है जिससे रोजा टूट भी जाएगा और आपको कफारा भी रहना पड़ेगा? कफारा फिर कफारा जो है 60 रोजे रहना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअसली, राइट? दैट इज कफारा। तो उसके कंडीशंस हैं कि अगर से रमज़ान का रोज़ा टूटा, रमज़ान का रोज़ा टूटे आप, तो नेक्स्ट इंटेंशनली तोड़े। थर्ड इज कोई एक्सक्यूज नहीं था आपको तोड़ने के लिए रोज़ा, फिर भी रोज़ा तोड़े आप। और फोर्थ कंडीशन इज डायरेक्ट तरीके से रोज़ा तोड़े। डायरेक्ट तरीके से सूरतन जिसको बोलते हैं, यानी एक्चुअल और डायरेक्ट तरीके से रोज़ा तोड़ने का मतलब ये कि anything entering the GIT through the mouth only, not through the nose or anal canal or skin opening। माउथ से अगर से कोई चीज ले रहे हैं तभी जो है कफारा आएगा आपको, ठीक है, विद द अदर कंडीशंस आई हैव मेंशन्ड। एंड वो भी ऐसी चीज ले रहे हैं जो या तो न्यूट्रिशन है, या मेडिसिन है, या एंजॉयमेंट है, जैसा सिगरेट लेते स्मोकिंग करते हैं या पान चबाते पान खाते, राइट? इन तीन चीजों में। और अगर से ऐसी कोई चीज खाए जो नॉर्मली ये तीन चीजों में इंक्लूड नहीं होती, जैसा कि कोई मेटल खा लिया, कोई मिट्टी खा लिए, पत्थर निगल लिए, उससे जो है कफारा नहीं आएगा, सिर्फ रोजा टूटेगा, एक कफारा एक कज़ा रहना पड़ेगा बस। फिर इसके साथ साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो एक्चुअल इंटरकोर्स है, चाहे वो वेजाइनल हो या एनल हो, इन दोनों चीजों में भी कफारा भी देना पड़ेगा कज़ा के साथ साथ, ठीक है? फिर और किन चीजों में कफारा नहीं आएगा, सिर्फ कज़ा होगा, सिर्फ एक रोजा खड़ा रहना पड़ेगा, बाद में रोजा टूटेगा, सिर्फ एक कफारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर से इफ एनीथिंग इज एंटरिंग थ्रू द नोज और थ्रू द एनल कैनाल और थ्रू एनी अदर स्किन ओपनिंग, जो कनेक्शन है जिसका ट्यूब का GIT से, या ऐसी चीज खाए जो सॉइल है, पेबल्स है, जो नॉर्मली जो लोग नहीं खाते, या इजैकुलेशन विच इज डन थ्रू फिजिकल स्टिमुलेशन, नॉट इन द एनल, नॉट थ्रू एनल सेक्स, नॉट थ्रू वेजाइनल सेक्स, ठीक है? लाइक इन मैस्टरबेशन, हालांकि मैस्टरबेशन भी हराम है, ऑलरेडी मैं आई टोल्ड यू शुड नॉट बी डूइंग दिस थिंग्स। बट अगर से समबडी डस, तो उसके लिए रोज़ा टूट जाएगा, एक रोज़ा बाद में क़ज़ा रहना पड़ेगा, कफ़ारे की नौबत नहीं आएगी, ठीक है? सो दिस आर द थिंग्स। ये कफ़ारा के बारे में डिटेल्स है। एक तो ये कि 2 महीने के 60 दिन के रोज़े कंटिन्यूस रहना पड़ेंगे विदाउट गैप। और अगर कोई इतना बीमार कमज़ोर है जो नहीं रह सकता इस तरह से रोज़े, तो दिन उसके लिए 60 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना पड़ेगा। उसके डिटेल्स हो रहे हैं, आप उलेमा से पूछ सकते हैं इफ किसी को ज़रूरत पड़े, खुदा ना वास्ता तो। देन और कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा जो है टूटता है सिर्फ, और इसके कफ़ारा नहीं रहता, सिर्फ एक कज़ा अदा करना पड़ेगा बाद में? इट इज़ लाइक कोई बीमारी के वजह से तोड़े रोज़ा, या बीमारी के डर से तोड़े, या एक्सीडेंटली कोई रोज़ा तोड़ दिए, एक्सीडेंटली नहीं चाहते हुए रोज़ा टूट गया आपका, जैसा कि वज़ू करते वक्त में, या गसुल करते वक्त में, कुल्ली करते वक्त में, पानी नाक में लेते वक्त में अंदर चले गया, इन दैट केस, वैसे सिचुएशंस में। वैसे ही सहरी या इफ्तारी में जो है टाइम आपका मिस कैलकुलेशन हो गया, और आप जल्दी इफ्तार कर लिए, या देर से फजर के टाइम स्टार्ट होने के बाद में भी सहर करते रहे, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। एंड बट उसमें कफ़ारा नहीं आएगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके अंदर। तो बेसिकली कफ़ारा जब आता है जब आपको अगर से कोई बहुत ही रिबेलियस तरीके से जो है रोज़ा तोड़े, और जो है शरीयत के हुक्म की बिल्कुल जो है वो परवाह नहीं करते हुए जो है खा लिया पी लिया बगैर सोचे के, मतलब वांटेडली, बगैर कोई एक्सक्यूज के खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे के लिए खा रहे हैं या ताकत के लिए खा रहे हैं, ये बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से रोजा तोड़ रहे हैं, तभी आता कफारा, वरना कफारा कई चीजों में नहीं आता अक्सर, सिर्फ अदा अदा करना काफी हो जाता। एंड कोई फोर्स कर रहा है आपको तो भी जो है कदा रहना पड़ता है, रोजा तोड़ गया तो। या दांत में कोई चीज अटक के थी शहरी में खाए बाद में, साफ नहीं करे दांत, एक्चुअली साफ करना चाहिए दांत, लेकिन अगर साफ नहीं करें, कोई चीज अटक के थी, गोश्त अटक के था, कुछ अटक के था दांतों में, और एक वो चने के साइज से जो है छोटा था, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बराबर था साइज या उससे बड़ा था और वो आप निगल लिए रोज़े की हालत में, मुंह के अंदर ही, तो फिर तो उसको उससे जो है रोज़ा टूट जाएगा। वैसे ही जो है कोई और चीज़ खा लिए,
जो नॉर्मली नहीं खाते लोग, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। एंड देन टूथब्रश या माउथ वॉश यूज़ करें आप और वो स्वेलो कर लिए तो रोज़ा टूट जाएगा। वैसे ही जो है आप जो है धुआं आप जो है होना बोल के स्टीम लिए, हम समझे बहुत लोग स्टीम लेते, स्टीम इनहेलेशन लेते। स्टीम इनहेलेशन अगर से आप वांटेडली लिए हैं तो फिर रोज़ा टूट जाएगा उससे। वैसे ही मैस्टरबेशन से भी रोज़ा टूट जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा कि वो हराम है, नहीं करना चाहिए। फिर रमज़ान के अलावा जो भी दूसरे रोज़ा कोई है वो तोड़े आप, नफिल रोज़े है या क़ज़ा रोज़े भी रमज़ान के, आप रमज़ान के बाहर रह रहे हैं वो तोड़े तो भी उसके लिए जो है कफ़ारा नहीं आता, सिर्फ क़ज़ा अदा करना पड़ता। एंड एनस में कोई सपोजिटरी डाले उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और नोज ड्रॉप्स या नेबुलाइजर यूज़ करें आप, क्योंकि नोज ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे तो नाक में से फिर वो इट विल गो ऑलमोस्ट इनएविटेबली इट विल गो इनटू द फेरिंग्स, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो फिर टूट जाएगा रोज़ा। वैसे नेबुलाइजर आप लेंगे तो टूट जाएगा रोज़ा। कोई भी मेडिसिन दवा आप जो है डायरेक्टली लुमन में जाएगी, लुमन में इंजेक्ट करेंगे आप जीआईटी के, तो टूट जाएगा रोज़ा। वॉमिटिंग, डेलिबरेटली आप वॉमिटिंग करें, वॉमिटिंग इंड्यूस करें आप अगर से, और इट हैज़ कम मोर देन इक्वल और मोर देन ए माउथ फुल, यानी मुंह में आप कंट्रोल नहीं कर सकते जितना, उतना अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट आ गया हो, तो फिर रोज़ा जो है टूट जाएगा। डेलिबरेटली इंड्यूस करे तो, अगर से अनइंटेंशनली आ गया खयाई तो कितने भी आओ खाए उससे फर्क नहीं पड़ता, अनलेस के आप swallow बैक कर लिए तो फिर टूट जाता रोज़ा। swallow बैक कर लेंगे खाए में से तो फिर एनी हाउ, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, इट विल ब्रेक द फास्ट। वैसे ही एस्थमा इनहेलर के बारे में मैंने कहा, इट विल ब्रेक द फास्ट बिकॉज आप यू आर इनहेलिंग वांटेडली इनहेल कर रहे हैं आप। बस लोग ये रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई मिसवाक करते हैं ना क्या हम, मास मिसवाक में भी जो है छोटे छोटे जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है कैसा भी वो भी जाते हैं ना, कैसा भी मुंह में अंदर फिर पेट में जाते हैं ना, तो मिसवाक तो छूट है, मिसवाक तो कर सकते हैं आप, सुन्नत है रोजे में भी। तो फिर इसी तरह से जो है अस्थमा का इनहेलर भी जो है उसके बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हो गए तो भी जो है इट्स नॉट हार्मफुल। बट इसमें फ़र्क एक ये है कि मिसवाक के पार्टिकल्स जो आपके मुंह में जा रहे हैं, आप वांटेडली फॉलो नहीं कर रहे हो मिसवाक के पार्टिकल्स जाना बोल के, आपका नियत सिर्फ ये है कि आप मिसवाक करके थूक देना बोल के, राइट। वहाँ इंटेंशन नहीं है उसको इंजेस्ट करने का मिसवाक के पार्टिकल्स को, जबकि अस्थमा इनहेलर के अंदर आपको मुंह में आप होना बके ले रहे हैं स्वयं खुद से, राइट। So that's why it breaks the fast, and because it's going through the throat, remember that. It ultimately it's going into the lungs, but also a certain amount of it will enter the stomach. ये उसके बारे में there is lot of research, कई papers है उसके बारे में online आप देखेंगे कि there is, it is clearly documented that definitely some percentage of the medicine will enter the stomach and GIT, if, even if you take through the asthma inhaler। तो आप यू कैनॉट स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग, जो भी चीज़ थ्रोट में जाती है पोस्टीरियर पार्ट में थ्रोट के, वहां से आप यू कैनॉट कंट्रोल इट उसको, यू कैनॉट स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग टू द एसोफेगस, ठीक है। तो एनीथिंग इज गोइंग थ्रू द थ्रोट इट विल ब्रेक द फास्ट, खत्म बात। स्टमक में जाने की जरूरत नहीं है उसको, वहां से वो लंग्स में भी क्यों ना जाए तो उससे रोजा टूट जाता है। एंड आजकल वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती रोजे में लेने की अक्सर, अनलेस इट इज इमरजेंसी सिचुएशन। जो क्रॉनिक पेशेंट्स है आजकल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोकोडाइलेटर्स अवेलेबल है स्प्रेस, तो आप शहरी में भी ले लिए एक पफ और इफ्तार में भी ले लिए तो काफी हो जाता जनरली। सो यू कैन कंसल्ट योर पल्मोलॉजिस्ट एंड डिसाइड दैट। वैसे नेजल स्प्रे भी है, नेजल स्प्रे क्योंकि द स्प्रे विल एंटर द थ्रोट, आप नोस में से जो है विल गो टू द फेरिंग्स बाद में पीछे, और वहां से आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तो इट विल ब्रेक द फास्ट। वैसे ही आप एनीमा है, दैट विल ब्रेक द फास्ट। एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि उसको मेडिसिन जेल वगैरह लगाते हैं और लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे लाते हैं, लगाते हैं थ्रोट में, मारते हैं डालने के लिए उसको, तो इट विल ब्रेक द फास्ट, दैट्स व्हाई। एंड देन रेक्टल एग्जाम, अगर से ग्लव्स पहन के हम अनपाउडर्ड ड्राई ग्लव्स अगर से आप डालें एनल केनॉल में विदाउट एनी जेल और मेडिसिन, तो फिर इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। बट ऐसा ऐसा नहीं करते हम क्योंकि इट विल बी पेनफुल, वी जनरली अप्लाई जेल और समथिंग टू द ग्लव्स। तो वो ऐसा ग्लव्स आप डालेंगे अंदर जेल के साथ या कोई मेडिसिन के साथ या पानी या तेल के साथ, तो फिर इट विल ब्रेक द फास्ट बिकॉज यू आर एंटरिंग समथिंग इनटू द एनल कैनल, ठीक है। वैसे ही जो है अल्ट्रासाउंड करे, रेक्टल अल्ट्रासाउंड कर रहे कोई, ट्रांस रेक्टल प्रोब डाल रहे हैं अंदर, तो इट विल ब्रेक द फास्ट।
whereas transvaginal probe डालेंगे तो it will not break the fast because vagina is not connected to the GIT। ठीक है, वैसे ही ब्लीडिंग गम्स का है, अगर से किसी के गम्स गम्स ब्लीड हो रहे हैं, मुंह में ब्लीडिंग हो रही रोजे में, तो उसको निगलना नहीं है, यू ट्राई टू स्पिट इट आउट। और अगर आप निगल लिए और उसका आपको ब्लड का मजा आ रहा था उसके अंदर, या क्वांटिटी ऑफ ब्लड वाज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ सलेवा जो आप निगले, तो फिर इट विल ब्रेक द फास्ट, तो उसके लिए एक खदा रहना पड़ता बाद में। देन तो ये चीजें इससे पहले कि जो अब हम लोग वी हैव सीन व्हाट ब्रेक्स द फास्ट, नाउ वी विल सी व्हाट डज नॉट ब्रेक द फास्ट बट इज मकरूह। ठीक है, ऐसे रोजे का जो है सवाब कम हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। जैसा कि टेस्टिंग और चीविंग समथिंग विदाउट swallowing इट विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, जबरदस्ती मुंह में ले रहे हैं कोई चीज फिर थूक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो है किसिंग विथ डिजायर, दैट इज ऑल्सो मेक्स रोजा मकरूह। और थूक जमा कर करके निकलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जस्ट जब भी आए थूक निकल लीजिए आप, उसको जमा करके एक पूरा एक पानी के घूंट के ऐसा बनने की कोशिश मत करिए आप उसको। और एक्सेसिवली जो है गार्गलिंग कर रहे हैं, ये दैट ऑल्सो इज नॉट गुड, उसे मकरू अगर होता, क्योंकि फिर रोजा टूटने का जो है उसमें चांस होता है। देखिए, मकरू कौन सी चीज से रोजा मकरू होता है, उसके लिए प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। एक प्रिंसिपल ये है कि एनीथिंग विच विल मेक योर फास्ट डिफिकल्ट, रोजा रहना आपको जो है मुश्किल कर देता हो, जो चीज रोजा कंटिन्यू करना जो चीज आपके लिए मुश्किल बना देता, वो हर वो काम वो मकरू हो जाएगा रोजा उससे। दूसरी चीज, हर वो चीज जो आपको रोजा तोड़ने तक आपको जो है ले आ सकता, यानी जिसमें तोड़ने का जो है रिस्क रहता रोजा, जैसा कि आप कुल्ली गरारा कर रहे हैं, डीप डीप गार्गलिंग कर रहे हैं, जिससे जो है पानी हलक में चले आने का अंदेशा है, जिससे रोजा टूट सकता है आपको। या वैसे किसिंग है, किसिंग विद डिजायर अगर से आप करें, तो आपको यू हैव ए डेंजर ऑफ फॉलिंग इनटू द इजैकुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बाद में। तो ये इससे रोजा जो है टूटने का रिस्क बढ़ जाता। तो एनीथिंग विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट विच विल मेक द फास्ट मकरू, and anything which will make your body weak, which will make you continuing the fasting, that will be again makruh। and anything which is a sin, जो भी गुनाह है, गुनाह आप अगर से रोजे के दौरान अगर से कोई गुनाह कर रहे हैं, तो वो भी जो है that will make the your fasting makruh, your little subtract your rewards। जैसा कि गीबत के बारे में मशहूर हदीस है, रसूल की और एक हदीस है कि जो भी किसी इंसान को अगर से रोजे की हालत में भी अगर से गलत बातें और इविल टॉक और इविल एक्शन से रुकना नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है बोल के। तो ये बात क्लियर है कि रोजे में जो है गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, लोगों को जो है दिल दुखा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं रोजे में, ये पूरे चीजें, ये जितने भी गुनाह कर रहे हैं, आंखों का गुनाह कर रहे हैं, राइट। मोबाइल में यू आर सीइंग लुकिंग एट नामहरम फीमेल्स, क्लासरूम में नामहरम फीमेल्स से बातें कर रहे हैं, गैर गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोक्स शेयर कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं गैर महरमों से। ये पूरे चीजें जो है आपके रोजे को मकरू कर देते, रोजे का आपका सवाब कम हुआ था, तो हराम भी है वैसे। तो ये चीज़ों से जो है बचना चाहिए। ठीक है, तो आई आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मकरूह कब होता रोज़ा। ठीक है, इन चीज़ों से रोज़ा टूटता नहीं, बट डेफिनेटली मकरूह होता रोज़ा जो है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑल्सो इफ समबडी इज लुकिंग एट समथिंग विच इज, और वो किसी को देखने के बाद में उसको जो इजैकुलेशन हो जाए विदाउट टचिंग, टच भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ देखने से कोई चीज किसी को जो है इजैकुलेशन हो गया समझिए, जस्ट यू लुकिंग एट योर स्पाउस एंड यू इजैकुलेट, देन रोजा विल बिकम मकरू, बट इट विल नॉट ब्रेक, क्योंकि आप यू हैव नॉट टच्ड योर ऑर्गन, और यू हैव नॉट टच्ड योर स्पाउस। ठीक है, और अगर से फिजिकल आप टच करे हैं, फिजिकल स्टिमुलेट करे हैं, तो फिर दैट विल ब्रेक द फास्ट ऑल्सो। फिर नाउ विल सी समथिंग विच विल नॉट ब्रेक द फास्ट एनी हाउ, जैसा कि वेट ड्रीम है, रोजे में आपको वेट ड्रीम आ गया, इजैकुलेशन हो गया नींद में रोजे की हालत में, तो दैट नॉट ब्रेक द फास्ट।
एंड कोई भूल के कोई चीज़ खा लिए पी लिए या इवन इंटरकोर्स भी कर लिए, बिल्कुल उनको याद ही नहीं था रोज़ा है बोल के, तो उससे भी जो है रोज़ा नहीं टूटता। देन अगर से कोई चने की साइज से भी छोटा कोई चीज़ अगर से निगल लिए जो दांतों में अटक के था पहले से, तो दैट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। वैसे ही स्किन पे कोई चीज़ अप्लाई करे, अब देखिए, अब मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो भी चीज़ जीआईटी में एंटर नहीं हो रही ना, जो भी मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल चीज़ है, मेडिसिन है, दैट नॉट ब्रेक द फास्ट। यू आप उसको अप्लाई कर लीजिए हर चीज़ को, जो भी चीज़ को जीआईटी से इंटर कनेक्शन नहीं है, इट नॉट ब्रेक द फास्ट। आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है, आपके स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, आप कुछ भी इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, मिसवाक कर रहे हैं या नहा रहे हैं पानी, या ब्लड टेस्ट ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, हाँ अगर से ब्लड डोनेट इतना कर रहे हैं आपके, आपको वीकनेस होती है उससे, और रोज़ा रहना आपको कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता, तो फिर रोज़ा मकरूह होता उससे। ऐसी अगर से सिचुएशन नहीं है तो फिर आप जो है ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं रोज़े में। इंजेक्शन चाहे कोई भी इंजेक्शन हो, लोकल एनेस्थेटिक हो, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथीकल, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इंट्रा ओरल, इंट्रावीनस, जो भी दे रहे हैं आप, चाहे इवन आईवी फ्लूइड्स भी दे रहे हैं इंट्रावीनस, दैट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। बट आप ये बात ध्यान में रखिए कि अगर से कोई विदाउट एनी रीजन, खाली जो है मेरे को अच्छा फ्रेश फील होना, मेरे को ताकत आना, मेरे को कमजोरी फील नहीं होना, बल्कि अगर से इंट्रावीनस इंजेक्शंस ले रहे हैं, जाके ग्लूकोज चढ़ा ले रहे हैं, तो इससे रोज़ा मकरू हो जाता आपका, रोज़ा मकरू होता डेफिनेटली। और बाज़ उलेमा के नज़दीक रोज़ा टूट भी जाता, बट मेजॉरिटी स्कॉलर्स से रोज़ा नहीं टूटता, सिर्फ मकरू होता। बट इन वे देन, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है स्कॉलर्स में, हमको इसको अवॉइड करना चाहिए ज़बरदस्ती के। कोई पेशेंट आ गया रोज़े में, तो उसको चढ़ा दे रहे हैं ज़बरदस्ती बिठा के उसको ग्लूकोज, ऐसा नहीं करना। अगर से क्लिनिकली इंडिकेटेड है तभी देना उसको, तो ये बात ध्यान में रखिए। एंड देन दूसरी बात ये कि सबलिंगुअल जो मेडिकेशन लेते, सबलिंगुअल जैसा सॉर्बिट्रेट देते या दूसरे दवाएं देते सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल मेडिकेशन एज सच इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब होता है ब्लड में। बट प्रॉब्लम ये है कि जनरली वो पार्टिकल्स जो डिजॉल्व होते सलाइवा में, तो अगर से वो सलेवा को आप बाद में निगल लिए, तो फिर दैट कैन ब्रेक द फास्ट। तो अगर से कोई सबलिंगुअल मेडिसिन रखे और सलेवा को निगले नहीं, बाद में सलेवा थूक दिए पूरा, तो दैट इज ओके। तो बहरहाल ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर से ज़रूरी नहीं है तो। वैसे ही डेंटल डेंटल प्रोसीजर्स है, अगर से कोई डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, आप डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए रोज़े में। ये इट कैन बिकम मकरू एक्चुअली, बिकॉज उसमें जो है ये अंदेशा रहता कि आप कोई चीज़ निगल लें, खून निकलता, पानी डालते, डेंटल डेंटिस्ट जो है कुछ भी दवा लगाते, कुछ भी करते, तो जो है थ्रोट में जाने का डर रहता उसमें। तो ये अवॉइड करना चाहिए। इफ्तार के बाद में कर लें आप डेंटल जो भी करना है प्रोसीजर्स। और ईयर ड्रॉप्स के बारे में मैंने कहा, अगर से आपके ईयर ड्रम इंटैक्ट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो रोज़ा जो है परफेक्ट है, रोज़ा नहीं टूटता ईयर ड्रॉप से। हाँ अगर से किसी के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बड़ा सुराख है, और उसमें से आप जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो है दवा डाल रहे हैं, ड्रॉप्स डाल रहे हैं, और वो दवा जो है इट इज़ गोइंग इनटू द नेजोफैरिंग्स, आपको फील हो रहा है नेजोफैरिंग्स में, वो अंदर फैरिंग्स में एंटर हो रहा, बल्कि आपको फील हो गया, तो फिर रोज़ा जो है टूट जाता, क्योंकि इट इज़ एंटरिंग द थ्रोट। ठीक है, बट दैट इज जनरली उसकी बहुत कम चांस रहती, ठीक है ना। छोड़, अगर से इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो रोज़ा जो है नहीं टूटता। अगर से किसी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है, तो फिर दे बेटर अवॉइड यूजिंग ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। और वैसे लिप बाम भी लगाना जो है, अगर से सिर्फ लिप्स को लगा के रखे लिप बाम तो नहीं टूटता, बट जनरली लिप बाम के बाद में वो थूक में मिक्स होकर जो है फिर निगलने का चांस रहता है उसको। तो इन सिचुएशन वो रोज़ा फिर मकरू हो जाता, और बल्कि रोज़ा टूट जाता अगर से आप हलक में एंटर हो गया तो इसीलिए लिप बाम भी जो है लगाना अवॉइड करना, इट शुड नॉट बी यूज्ड। यूनरी कैथेटर, इट डज नॉट ब्रेक द फास्ट। वैसे ही फर्टिलिटी टेस्ट है, वजाइनल अल्ट्रासाउंड है, वजाना में आप कुछ भी प्रोसीजर करें, यूट्रस में कोई प्रोसीजर करें, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट अनलेस देर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। किसी को वैसे को वजाइनल, किसी को जो है अगर से रेक्टो वजाइनल फिस्टल आया समझिए आप,
रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है, तो ऐसे पेशेंट को अगर से आप वजाना में कोई चीज डाले, इंजेक्ट करे, तो फिर इट कैन एंटर द रेक्टम, देन दैट विल ब्रेक द फास्ट, अदरवाइज इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट नॉर्मली। ठीक है, वैसे मेडिसिनल स्किन पैचेस विल नॉट ब्रेक द फास्ट, अकुपंक्चर, अकुप्रेशर, कपिंग, ये पूरी चीजें, क्योंकि कपिंग के बारे में हदीस शरीफ भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में कपिंग कर रहे थे बोल के। सो दैट डज नॉट ब्रेक द फास्ट, बट अगर से कपिंग इतनी कर रहे हैं आपके, आपको से कमजोरी हो सकती, चक्कर आ सकती, वीकनेस हो सकती, रोजा रहना मुश्किल हो सकता है, तो फिर कपिंग करना मकरूह आता, वो उसको अवॉइड करना पड़ता। वैसे जो है ड्राई नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब लिए आप, जो ड्राई स्वैब है जिसमें कोई दवा लगी हुई नहीं है, लिक्विड लगा हुआ नहीं है, तो वो स्वैब टेस्ट भी जो है कर सकते हैं, उसके लिए कोई जो है रोजा नहीं टूटता उससे भी। तो ये कपिंग के बारे में हदीस है बुखारी शरीफ की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कपिंग करते थे रोजे में भी। सो ये चीज़ें जो है, दीज आर द थिंग्स विच विल ब्रेक और नॉट ब्रेक द फास्ट। अब बाकी चीज़ें हैं कि अब आई थिंक these already have covered in detail in the last lecture, लास्ट ईयर लेक्चर ऑल्सो, इसके रिकॉर्डिंग भी है, खुद मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है ये उसकी रिकॉर्डिंग, आप लोग जो है पूरा डिटेल में देख सकते हैं, और डिटेल्स है फिदिया के बारे में, इमसाक के बारे में, और कौन कौन फिदिया दे सकते, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसको जो कभी भी रिकवर होने का चांस ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो है फिदिया दे सकते हो लोग। ठीक है, सो फिदिया कितना अमाउंट है, क्या है, वो पूरी चीज़ें जो है, या जो रोज़े ज़िंदगी भर क़ज़ा रखना था, नहीं रखा रोज़े क़ज़ा, वैसे जो है उसकी मौत आ गई करीब, तो वो जो है यू कैन मेक अ विल कि मेरी जो है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी की उससे जो है दे सकते हैं फिदिया। तो बहरहाल ये पूरे कंडीशन है उसके, क्या क्या है क्या नहीं है, उसके आप बाद में देख सकते हैं इंशाल्लाह। सो विद दिस आई विल एंड माय टॉक, क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह हम लेंगे थोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। देयर आर नो क्वेश्चंस? Jazakallah ओके, khairan, sir, for that enlightening and practical session. Your guidance beautifully bridged the gap between clinical knowledge and religious understanding. If you have any questions, we will now open the floor for discussion. Please feel free to ask by typing in the chat box or raising your hand. वजू के वक्त 1 से 2 ड्रॉप अनइंटेंशनली एंटरिंग, उससे रोजा टूटता क्या, पूछ रहे कोई? जी, अनइंटेंशनली आपको अगर से यू आर रिमेम्बरिंग दैट यू आर फास्टिंग, अनइंटेंशनली भी रोजा, एक दो ड्रॉप भी चले गए थ्रोट में तो टूट जाता रोजा, डेफिनेटली इट विल ब्रेक द फास्ट। इसीलिए आपको एहतियात से जो है वजू करना है, वजू करते वक्त में, वसूल करते वक्त में भी बहुत डीप जो है कुल्ली मत करिए, ऊपर ऊपर मुंह में जो है पानी रख के थूक देना बस कुल्ली में, ये जरा ख्याल रखना इसका। Is tayammum allowed for hospitalized patients? तयम्मुम का टॉपिक नहीं है आज का। एनी हाउ इफ यू वांट, हम लोग जो है आराम से एक तहारत के मसाइल, तयम्मुम वगैरह इन मेडिकल सिचुएशंस के बारे में कभी रमजान के बाद में वी कैन टेक अ सेशन इंशाल्लाह, यू कैन प्लान दैट। एनी हाउ तयम्मुम जो है वो लोग कर सकते हैं जिसको वजू करना जिसके लिए मुमकिन नहीं है। जी। जिसको स्किन केयर क्रीम से रोजा मकरूह होता क्या? नो, डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स? देखिए आप डिओड्रेंट अगर से लगाए तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, परफ्यूम अगर से आप इस तरह स्प्रे कर रहे हैं कि वो उसके ड्रॉपलेट्स आपके सांस से अंदर चले जा रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, उससे आपको रोजा टूटने का चांस रहता, तो जरा परफ्यूम मारते वक्त में स्प्रे केयरफुली स्प्रे मारना। डेली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करे तो रोजा रख सकते हैं? रोजा रखने का, ट्रैवलर के लिए रोजा रखना बेटर है अगर से रोजा रख सकता हो तो, और ट्रैवलिंग उसकी 48 माइल्स से एक्सीड हुई तो उसको छूट रहती। आपको अगर से डिफिकल्टी हो रही, बहुत मुश्किल है रोजा रखना, तो आपके लिए छूट है, बट बाद में खजा रहना पड़ता। अगर से रहे तो बेटर है, रह सक रहे हैं तो रह जाना अच्छा है, क्योंकि बाद में खजा रहना बहुत मुश्किल रहता। Does insulin injections break the fast? नो, आई ऑलरेडी टोल्ड, नो इंजेक्शन विल ब्रेक द फास्ट। अगर आप लेक्चर अच्छा सुने हैं केयरफुली सब लोग, तो क्वेश्चंस बहुत कम आते।
वाइट डिस्चार्ज से रोजा टूटता क्या फॉर फीमेल्स? नो, anything which is going out of the body will not break the fast. Only something which enters the body will break the fast. A woman who is doing a qaza fast for her compensation of menses in Ramzan in the remaining days, so it's allowed to fast on Fridays. आउटसाइड रमजान, हाँ, खजा रोजे तो रमजान के बाद ही रहना पड़ेंगे आपको, फ्राइडे या कोई भी दिन रख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। खजा है, खजा तो वाजिब है ना। आई ड्रॉप्स डाले बाद में आई ड्रॉप्स का टेस्ट आया तो उसका क्या है? इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आई ड्रॉप्स इज एग्जेम्प्टेड, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमको हदीस मिलती कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोजे की हालत में ही यूज्ड टू अप्लाई कोहल इन द आइस, सुरमा लगाते थे आंखों में। कैन यू ब्रश और टीथ ड्यूरिंग फास्टिंग? Can you brush? Yeah, you can brush, but use miswak to brush your teeth, or use dry brush. पेस्ट यूज मत करिए, पेस्ट से करना मकरू है, और अगर निगले पेस्ट का कुछ भी थोड़ा भी चीज तो फिर उगरा तुड़ जाता। नो मोर क्वेश्चंस आई थिंक। इतने पूरे क्वेश्चन कवर थे। हो गए। जी सर, इतने ही क्वेश्चंस थे। ओके, अच्छा, कोई ऊपर पूछे थे क्वेश्चन, इफ विक्स नेजल इनहेलेशन। पहले, नेजल स्प्रेस फॉर एलर्जिक रेनिटिस ब्रेक्स फास्ट पूछ रहे कोई। हाँ, नेजल स्प्रे के बारे में मैं बोला आपको। नेजल स्प्रे जनरली नेजल जब स्प्रे लेते हैं आप, तो इट विल गो टू द नेजोफैरिंग्स, उसके बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नेजल, इफ इट स्टेज ओनली इन द नोज नहीं छूटता, बट प्रॉब्लम इज इट विल नॉट स्टे, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल गो इनटू द थ्रोट। तो इसीलिए जो है नेजल स्प्रे नहीं लेना चाहिए, इट विल ब्रेक द फास्ट, इट कैन ब्रेक द फास्ट। यूज ऑफ विक्स इनहेलेशन फास्ट ब्रेक क्या मकरू कुछ होता है क्या सर? विक्स इनहेलेशन मतलब, अगर से आप विक्स लेके नाक को लगा लिए, खाली उसकी स्मेल आप लिए, सूंघे उसको, तो इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। बट आप अगर से विक्स को आप पानी में डाल के गर्म कर रहे हैं, फ्यूम्स ले रहे हैं उसके, तो दैट विल ब्रेक द फास्ट। एक क्वेश्चन पूछे, वी आर इन द गल्फ, वहाँ सहरन नहीं होता तो अजान तक सहरी कर सकते? हाँ, वो तो मैं बोला आपको, गल्फ वगैरह में अगर अजान जनरली जो है दे गिव व्हेन द फजर टाइम स्टार्ट्स, तो तो आप अजान से जस्ट पहले तक जो है आप खा सकते हैं। जस्ट, तो देखिए, आपको आई टेल यू वन थिंग, ये रोज़ा एक बहुत ही अहम इबादत है। हम लोग जो है एक 2-4 मिनट के लिए जो है रिस्क नहीं लेना। तो अगर से समझिए, आपके मस्जिद जो लोकल मस्जिद है, उन्होंने जो है अजान देने से पहले, अजान अगर से एक आध मिनट बाद में दी, समझिए उन्हें टाइम शुरू होने के बाद, तो रोज़ा का टाइम आपका प्रॉब्लम आता ना। तो आप टाइम, आजकल पूरे ऐप्स अवेलेबल है, आप टाइम टेबल देख लेना कि क्या टाइम पे है फजर स्टार्ट आपके एरिया में, आपके सिटी में, और वो उसके लिहाज से आप जो है अजान से थोड़ी देर पहले ही जो है आप रोक दीजिए। आपको मालूम है ये टाइम पर अजान होती, उसकी फिक्र है ना अपने को, अपने पास पूरा टाइम टेबल है ना मौजूद, स्केड्यूल पूरा सहरी का और इफ्तार का डेली का टाइम अपने पास है ना, टाइम टेबल मौजूद, और उसको अपन देख के जो है मेंटेन करना, उससे थोड़े एक फ्यू मिनट्स पहले रोक देना अपन, ताकि अपने को जो है रिस्क ग्रे जोन में नहीं आना अपन बोल के। If a person knows that he or her has broke fast in early part of day, so can they continue their fast in spite of knowing they have to make it qaza? यस, उसको मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम बोला भी था ये, और इसमें है स्लाइड, उसको इमसाक बोलते हैं। आप देखिए, अगर से किसी का रोजा जो है टूट गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अब आराम से बैठ के बिरयानी खा सकता। उसका मतलब ये है कि वो बाकी का टाइम पूरा इफ्तार तक ही हैज टू बिहेव लाइक ही इज फास्टिंग ओनली, रोजा टूट गया तो भी। और इवन इट दिस रूल दिस कॉल्ड एज इमसाक। इसका मतलब ये है, इवन इट दिस अप्लाइज ओनली आल्सो टू दोज वुमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, जिसके मेंसेस एंड हो गए दिन के टाइम में। ठीक है, तो जैसे ही आपके मेंसेस एंड हो गए, आप प्योर हो गए, आप इमीडिएटली जो है आप यू हैव टू स्टॉप ईटिंग और ड्रिंकिंग टिल द इफ्तार टाइम, यू हैव टू बिहेव लाइक यू आर फास्टिंग। वैसे ही ये बच्चा अगर से बालिग हुआ दिन के टाइम पे, या कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करा दिन के टाइम पे,
तो अब वो बाकी का टाइम जो है इफ्तार तक दे हैव टू, नो दे कैन नॉट ईट और ड्रिंक। और वैसे मुसाफिर रोजा नहीं था जो, अगर से वो घर को अपने पहुंच गया, अपने सिटी शहर को पहुंच गया, दिन के टाइम पे पहुंच गया रोजे के टाइम पे, तो उसको चाहिए कि वो ही कैन नॉट ईट और ड्रिंक टिल द इफ्तार टाइम, एंड दैट इज वाजिब। ये याद रखिए, वाजिब है। अगर से खाएंगे पिएंगे तो गुनहगार होंगे। और बाद में खजा तो रहना ही है वो रोजे का, रोजा तो होता नहीं वैसे भी, बट उसके उसको रोकना भी जो है इसके लिए वाजिब है, वो दैट इज कॉल्ड एज इमसाक। Can we take injection for tooth treatment in fast? आई टोल्ड यू इंजेक्शंस डोंट ब्रेक द फास्ट, बट डेंटल ट्रीटमेंट अगर से आप रोजे में कराए तो, और से कुछ सिक्रीशंस, ब्लड वगैरह पानी वगैरह चले गया हलक में, तो फिर रोजा टूट जाता। तो अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना दिन में डेंटल ट्रीटमेंट, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, क्योंकि बहुत हाई रिस्की है, वो मकरू होता है उससे रोजा, बगैर जरूरत के वो करे आप तो। I'm an anesthesiologist and I'm working in Fernandez Hospital, but I have to have conversation with females. जब क्या करना बोल के पूछ रहे हैं। कन्वर्जेशन विद फीमेल्स, देखिए गैर जरूरी कन्वर्जेशन अवॉइड करना ना मैडम से, वो मैं बोला आपको। जरूरत के तहत कन्वर्जेशन अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला को मालूम है, आपको भी मालूम है, जो भी आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो कितना जरूरत है कितना जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक है, वी कैनॉट, उसके उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जरूरत है तो बात करिए, जरूरत के हद तक बात करिए, उसमें जो है इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक्स कट कर रहे हैं, अवॉइड करना। If menses is over but can't take bath till certain time, so till that time we should fast and also do qaza namaz for that time. या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, पीरियड में भी रोजे डर के रहना, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन, रमजान में नहीं रह सकते रोजे आप, अगर से पीरियड में है तो रोजे रहना हराम है। इफ यू आर मॉर्निंग टाइम पे, रोजा रोजा जब शुरू होने का टाइम रहता, वो टाइम पे अगर से आप पाक नहीं हैं, आप रोजे में यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, तो वो टाइम पे रोजा रहना आपके लिए हराम है बेसिकली। हाँ, दिन के टाइम में अगर से आप जो है पाक हो गए, तो फिर उसके बाद में जो है आपको, यू कैन नॉट ईट एंड ड्रिंक, उसके बाद में कज़ा करना पड़ता है उसकी। What are the indications that a diabetic individual should break his or her fast? इफ अगर से किसी को भी जो है सब तबीयत खराब हो रही रोजे में, ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा, तो इमीडिएटली जो है आप, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं या डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली जो है रोज़ा ब्रेक कर देना। तो डॉक्टर्स की जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रह रहे हैं, उनको जो है रमज़ान से पहले उनको पूरा काउंसलिंग करना, एक्सप्लेन करना कि क्या क्या साइंस है जो दो लोग देखना चाहिए, जिसके बाद में रोज़ा तोड़ना ज़रूरी है उनके लिए, हाइपोग्लाइसीमिया के, हाइपोटेंशन के, डिहाइड्रेशन के, डीके के। ठीक है, ये डॉक्टर्स को जो है दे हैव टू एजुकेट द पेशेंट्स। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पे, व्हाट इज द रूलिंग ऑफ इमसाक व्हेन अ फीमेल गेट्स मेंसेस ड्यूरिंग फास्ट और शी मस्ट ब्रेक द फास्ट? देखिए वही तो मैं, इमसाक जो है उनके लिए है जो पाक हो गए। अब आप रोजा इफ्तारी करे थे, सॉरी आप समझे सहरी करे थे सुबह में, पाक थे आप, रोजा स्टार्ट हो गया, बाद में आफ्टर फ्यू आवर्स यू गेट स्टार्ट गेटिंग द ब्लीडिंग, मेंसेस स्टार्ट हो गए, तो आपको जब इमसाक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट इन अ प्योर स्टेट। ठीक है, हाँ आप ये बात जरूर है कि आप लोगों के सामने मत खाइए, डोंट ईट एंड ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट इज बैड मैनर्स, अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओपनली वो खा रहे पी रहे हैं, वो बेअदबी है। बट आप खा सकते पी सकते हो, कोई बात नहीं। वंस द मेंसेस स्टार्ट्स, आपके ऊपर रोजा फर्ज ही नहीं है, बल्कि आपके लिए हराम है रोजा रहना। और एक सवाल है, इफ वी एट ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन मेंसेस वेर ओवर, सो वी हैव कज़ा और कफारा? कफारा नहीं आता अम्मा, क्योंकि आप रोजा रोजा के स्टार्टिंग के टाइम पे आपके लिए रोजा वाजिब ही नहीं था ना सुबह में।
बिगिनिंग ऑफ फजर टाइम पे आपके पर रोज़ा फर्ज ही नहीं था, तो वो टाइम पे लिए आपके, अब वो टाइम का रोज़ा आपको जो है रहना के लिए आपको जायज़ ही नहीं था, तो एनी हाउ आपके लिए जो है कफारा नहीं आता, आपको जो है सिर्फ कज़ा आता अगर से आप इमसाक नहीं करे। ऑफ कोर्स गुनाह होता, इमसाक नहीं करे आप पाक होके बाद में, तो गुनाह तो है, बट एक कज़ा रहना पड़ता बाद में, और कफारा नहीं आता उसके ऊपर। कफारा कब आता, मैं आपको ऑलरेडी पूरी चीज़ें बोला। Can we undergo surgical procedures in fasting? माइनर सर्जरी कर सकते, कुछ नहीं होता, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है तो करा सकते, बट आपको मेजर सर्जरी है तो वाई यू वांट टू टेक द रिस्क, है ना। आपको मेजर सर्जरी में यू विल बी डूइंग अंडर सपोज जनरल एनेस्थीसिया, आपको बेहोश करके करेंगे, आपको जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली, आपको बेटर टू टेक उसकी आप वो छूट है, आप छूट ले लीजिए। मेजर मेजर सर्जरी है तो छोड़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से रोजा रख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको अंडर लोकल एनेस्थीसिया आपको तो कुछ छोटा मोटा प्रोसीजर प्रोसीजर कर रहे हैं आप, तो दैट्स ओके, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Moving on, I would like to extend our heartfelt gratitude to our respected speaker for his valuable time and knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly and place barakah in your work. I would also like to sincerely thank IMSA for organizing this meaningful session and all the participants who joined us online today. Your presence reflects your commitment to preparing for Ramadan in the best possible way. With that, we conclude today's program. Jazakallah khairan. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।